Since 2003, we are helping acid and kerosene oil burn victims through medical treatment, psychosocial support, and training for their rehabilitation. Alongside, a regular advocacy campaign helps to raise awareness about this heinous crime. Acid and kerosene oil burning is a gender-specific crime. Young girls and women between the ages of 14 to 25 are the common victims of this crime. Motives vary but are most frequently obsession, jealousy, suspected infidelity, refusal for marriage, female childbirths, demand for dowry, husband wanting to remarry, and non-cooperation among families. More than 700 acid and kerosene oil burn women from all over Pakistan are registered with the foundation. They are treated without distinction of caste, creed, or religion. BSF has a humane approach, and therefore these are not numbers but human beings to be served with all required support till they are rehabilitated. BSF has enlisted selected hospitals across Pakistan for checkup, follow-up, and surgeries of victims. Volunteer doctors from Britain, USA, France, and Italy. Assalamualaikum, I'm Masarrat Misbah, and I've been in the field of beauty for the last 43 years. जब मैंने beauty industry को join किया था, उस वक्त beauty was like only for the privileged one or for certain occasion. And जो इस field में काम करती थी ख़वातीन, वो कुछ अच्छी भी नहीं समझी जाती थी. मुझे डॉक्टर बनने का शौक था. अनफॉर्चुनेटली मैं बन नहीं सकी. आई वॉज द एल्डेस्ट इन द फैमिली, तो मेरी शादी भी जल्दी हो गई और जिसकी वजह से मेरी पढ़ाई रह गई. और उसके बाद दैट मैरिज डिडंट वर्क एंड आई केम बैक टू माई पेरेंटल हाउस विथ माई 2 kids. And that was the time when my father realized, I wouldn't say his mistake, but he realized that something was not right. So he called all of us, the 6 sisters together and the 2 brothers. I was the eldest in the family, and said कि अब मेरी कोई बेटी उस वक्त तक उसकी शादी नहीं होगी जब तक वो पढ़ाई मुकम्मल नहीं कर ले. This was the vision of a man. कितने सालों पहले की बात है. So that gave us all, the women in the family, the girl children that were there, उनको एक मजबूती दी एक आदमी ने. That was my father. So उनके विजन की वजह से आज most of my sisters are all empowered. They've got their own businesses, all their houses, and their children, and all their children are working very good, alhamdulillah. And the 2 brothers are into pharmaceutical. My son teaches in Indus Valley in Karachi, and my daughter Rida has taken care of my whole business, that is the beauty business. So my business when I started was very, it was all about glamour, it was all about making women beautiful, but I did realize that girls who were in that field were from very humble background, and I was lucky enough to go abroad and get my vocational training, which was very important, and also lucky to have continued with my studies, and I did my graduation, etc. So I realized कि जो बच्चियाँ मेरे साथ काम करती हैं, for them to be empowered, for them to be उस ज़माने में ना ये words नहीं होते थे, empowerment and एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेसेस. औरतों के उस ज़माने में औरतें या तो टीचर्स होती थी या ज़्यादा हो गया तो डॉक्टर बन गई. सो मैंने ये रियलाइज़ किया कि जो बच्चे मेरे साथ काम कर रही थी, दे वर नॉट, दे कुडंट गो or afford to go abroad or get any proper qualification. So I started teaching them. I taught them exactly what I learned from UK and from the other beauty institutes, which I kept taking courses and training वगैरह. उसका सिर्फ मकसद ये था कि now that I'm in this field,
I wanted to be the perfect person in my field. There was no such thing as 99.9% in my life. It had to be 100%, or I would choose to do something else. So यही मैंने चीज़ अपनी उन बच्चियों में inculcate की, and शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह now 43 years down the lane, we've got 80 salons all over Pakistan. और हर 80 सैलॉन में से एक सैलॉन के अंदर there must be around 35-40 women who are working there, qualified by our institute, trained to give good international brands training, etc. And of course they are empowered. Now one salon, 45 girls, 40 girls, 45 and 40 households, which means कि वो बच्चियाँ जो हैं वो अपना हिस्सा अपने घर के काम में उसको बेहतर करने में डाल रही हैं. ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अगर एक औरत खुद मुख्तार हो जाती है तो वो बाइख्तियार हो जाती है. जब वो बाइख्तियार हो जाती है तो वो बाएतमाद हो जाती है. मीनिंग कि वो एम्पावर्ड हुई, उसके बाद उसने अपनी हिस्सा डालना शुरू किया, उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस आया, एंड देन शी हैज़ अ से इन हर हाउस होल्ड. वही बच्ची हु वाज मे बी नॉट so well treated because of our gender biases in our country, in our society. अब वो क्योंकि पैसे दे रही है तो उसकी से है. अब वो पैसे दे रही है तो वो अपने भाई को भी पढ़ा सकती है और अपनी बहनों को भी पढ़ा सकती है क्योंकि वो उनके पैसे दे रही है. सो दिस वाज समथिंग दैट आई लर्न ड्यूरिंग दिस पैसेज ऑफ माई टाइम कि ख़वातीन का, बच्चियों का, लड़कियों का बहुत ज़रूरी है कि उनके पास तालीम होनी चाहिए, एजुकेशन. अगर एजुकेशन नहीं है तो दे हैव टू हैव अ स्किल, कोई ऐसा स्किल जो कि उनको उनके पाँव पे खड़ा कर सके. और उसके बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको दी जाती हैं वो उसको संभालें, उनको करें. अगर उनके साथ फिर भी ज़्यादती हो, देन इट इज़ टाइम फॉर देम टू स्टैंड फॉर देयर राइट्स. then it would be the right time for them to voice their concern. क्यों? क्योंकि अब वो मजबूत हो चुकी है. So मेरा उस ज़माने में दिमाग में ऐसा नहीं था कि बच्चियाँ ये करेंगी, बच्चियाँ मजबूत हो जाएंगी. उस ज़माने में बस एक ही चीज़ थी कि मुझ जैसी कोई और अगर है तो वो मजबूत होनी चाहिए. So ये सिलसिला चलता रहा, and with the largest chain of beauty salon all over Pakistan. I started with my training centers also. We've got 4 amazing training centers in Karachi, Lahore, Islamabad and in Peshawar, जहाँ पे बच्चियाँ ट्रेन होती हैं, and they can go to any other salons because they're qualified, and at the same time because it is the standards are very high for girls to get training from my institute. They can apply abroad also, और अपने businesses खुद भी खोल सकती हैं. So there are many girls, many women who have actually they've got their own small businesses, और उसमें फिर उन्होंने लोगों को, बच्चियों को और entertain किया और उनको employ किया. Somewhere down the lane I also realized that men or boys, or for that matter trans persons जो थे उनको अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता. हर बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता. ऐसे बच्चे जो कि अपने घरों में वर नॉट ट्रीटेड नाइसली बिकॉज उनके अंदर फीमेल और जो खुसूसियात थी वो ज़्यादा होती थी, तो उनके लिए ब्यूटी का एक ऐसा बिजनेस है जो कि दे वेरी हैप्पीली एंगेज्ड इनटू दैट. एंड फॉर सम ऑड रीजंस जो फैमिली मेम्बर्स हैं उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया विद द पैसेज ऑफ टाइम, बिकॉज नाउ इट हैज़ कम आउट एंड नाउ इट इज़ ऑल्सो society has accepted it that they are differently able children. So if they're differently able children, we should appreciate them, we should encourage them, and we should make sure that it is an easy accessibility
in their jobs, in their offices, in their own businesses, and the way they conduct themselves. So हमारी वो ट्रेनिंग क्लासेस जो थी वो उन बच्चों के लिए भी हो गई. ये सारी चीज़ें हो रही थी. तो there was a young girl who came to me, that was way back in 2003, and she was totally burnt. She had lost an eye, she's lost her nose, her neck and chin was contracted, a part of her hand was also very badly burnt. And she came to me because she thought that with my makeup skills I can make her look better or beautiful once again. I was taken aback, I was shocked. I couldn't understand, how somebody could do something like that, because she did tell me that somebody has thrown acid on her. So that was the turning point in my life about an issue which was prevalent in our society, which was there, but people wouldn't talk about it. People were afraid, people were ashamed. Maybe the reason of throwing acid on a girl, or a young girl, a mother or a wife, was not her fault, but yet the family member would always make sure that she's the one who's done something to deserve this. Even if they had the courage to go to file an FIR against the perpetrator, the person writing would always say, "Ki kita si janab, what have you done to deserve this?" So when that girl came to me, my whole life, my concept, my thinking, everything changed. मैं घर गई, मैंने अपने अल्लाह से बहुत माफ़ी मांगी, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी थी जो थी और मैंने गौर नहीं की. मैंने उसका शुक्र अदा किया कि उसने मुझे इस काबिल समझा कि मैं उसकी मखलूक को, उसकी जो क्रिएशन थी, उसको कुछ बेहतर कर सकूं. And this is how I started working for acid and kerosene oil burn victims, जो कि intentionally जिनके ऊपर थ्रो किया जाता था. 2005 में I got myself registered as a non-profit, non-governmental organization, Depilex Smile Again Foundation. Now, Smile Again Foundation is a beautiful name, which means दोबारा मुस्कुराओ. I put Depilex in front is because by this time, the Depilex has become a household. Anywhere in the country, may it be in a very small town or a small city or bigger cities, Depilex से औरतें एसोसिएट होती हैं. बट Depilex से ख़वातीन, बच्चियाँ, छोटी बड़ी, वो सब आती हैं कि हमारे लिए कुछ बेहतर बना दीजिए. So हमने Depilex रखा ताकि अगर खुदा न खास्ता if a girl is burnt maybe somewhere in Sakhakhel or Swat or maybe खैरपुर और उमरशोर और उमरकोट, उसको पता है कि हम Depilex में जाएंगे तो हमारी मदद होगी. So इस तरह से ये सिलसिला शुरू हुआ. लेकिन जब 2005 में मैंने इसको रजिस्टर किया तो मुझे ये भी एहसास हुआ कि टेकिंग केयर ऑफ दीज गर्ल्स इट्स अ मेहनत जॉब, क्योंकि नॉट ओनली देयर सर्जरीज विच कुड be 25, 30, 40 or maybe more than that, that they would get, it would be very expensive, and none of them were able to afford these kind of surgeries. So we as the organization Depilex Smile Again Foundation took it on ourselves कि हम लोग इनकी मेडिकल सर्जरीज फ्री कराएंगे. जब हमने वो फ्री कराना शुरू किया तो हमने अंदाज़ा लगाया कि ये तो बहुत ज़्यादा है. So we started asking for help from our friends and clients and relatives, and they were very kind to help me. But obviously, this is an issue which is because of the patriarchal or male egoistic society, जहाँ पे औरत का नाम नहीं सुना जाता है, जहाँ पर अगर वो बेटियाँ पैदा कर रही है तो उसका कसूर है, अगर वो जहेज कम लाई है तो वो उसका कसूर है, अगर उसने किसी से शादी से इनकार किया है तो उसका कसूर है, अगर उसको जायदाद में कुछ हिस्सा मिलना है तो वो उसका कसूर है. तो ये सारे जो रीज़न्स थे, ये वो रीज़न्स हैं
जो कि मर्द और द मेल मेंबर ऑफ सोसाइटी आर नॉट विलिंग टू इम्पार्ट. सो हमें ये सोच को भी बदलना है. इस मेंटालिटी को बदलने के लिए वी नीडेड अ लॉट ऑफ हेल्प एंड सपोर्ट फ्रॉम द सिविल सोसाइटी, फ्रॉम द गवर्नमेंट, फ्रॉम द governmental different departments like the legal department, safety and security के point of view. So the advocacy was very important. So when I started with one girl and when I asked the girls, placing an ad in the newspaper saying that Depilex, 42 girls walked in and I said to Lamia, मैं इतना नहीं कर सकती हूँ, मेरे पास इतनी मेरी औकात नहीं है. But Allah says in Quran कि वो आपको उतना ही वज़न देता है जितना आप उठा सकते हैं. और ये तमाम चीज़ें जो रीज़न्स जो मैंने आपको बताए हैं, ये वो रीज़न्स हैं जो कि कुरान में लिखे हुए बहुत साफ कि ये मना है. बच्चियों की पैदाइश बरकत है. जहेज़ की लानत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को क्या दिया था? हज़रत फातिमा ज़हरा को क्या जहेज़ दिया था? शादी के मामलात में बच्चियों की रज़ा जो है वो शामिल होनी चाहिए. बच्चियाँ इनकार करना चाहती हैं, वो इनकार कर सकती हैं. शादी ख़त्म करना हो तो सिर्फ तलाक मर्दों का हक नहीं है, खुला औरतों का भी हक है. सो ये तमाम चीज़ें वो हैं जो कि बतानी चाहिए. हम इसलिए नहीं बताते कि अगर बता देंगे तो लड़कियाँ तो मजबूत हो जाएंगी और मजबूत लड़कियाँ खड़ी हो जाएंगी. और जब वो खड़ी हो जाएंगी तो फिर उनकी से जो है वो मैटर करेगी. तो हमने फिर कैंपेन्स रन करने शुरू की. कैंपेन्स अबाउट नंबर 1 अबाउट दिस हीनियस क्राइम, हाउ टू कर्टेल इट, लॉस जो कि ऑलरेडी हमारे मुल्क में मौजूद है लेकिन उनको और ज़्यादा उसमें अमेंडमेंट्स की ज़रूरत थी. सो 2011 में एसेट क्राइम के ऊपर जो थी अमेंडमेंट्स आई. और फिर 22 में मैंने अपने एक बर्न विक्टिम के साथ मिलके सेल ऑफ एसिड के ऊपर जो है उसके ऊपर एक पिटिशन दायर की और सेंट गवर्नमेंट ने, सेंट कैबिनेट ने उसको मंजूर की. सो नाउ देयर इज रेगुलराइजेशन ऑफ एसिड सेल. सो ये भी एक काम हो गया. सो फ्रॉम आइडेंटिफाइंग द गर्ल्स टू गिविंग देम फ्री मेडिकल हेल्प एंड सपोर्ट, helping them in their in the legal aspects of their issue, advocacy, and then empowerment. Empowerment as soon as the limbs are working, the eyes have opened up and there is still light there, or the neck which is contracted can now move and look around. I mean, कितनी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम वी टेक इट फॉर ग्रांटेड. अल्लाह मियाँ हमारी उंगलियाँ हिल रही हैं, लेकिन अगर ये उंगलियाँ ना हिले ना तो आपको पता चले कि कितनी मुश्किल होती है. या आप इस तरह हैं और आप ऊपर आसमान नहीं देख सक रहे हैं, तब आपको पता चलेगा. ये वो एहसास है जो कि हम लोगों में फैलाना चाहते हैं. ये शऊर है जो हम अपने बच्चों को देना चाहते हैं. और इसीलिए बच्चियों की तालीम विच इज़ इम्पॉर्टेंट, तरबियत जो बहुत ज़रूरी है, जो कहाँ से मिलती है? घर से मिलती है. तरबियत कौन देता है? माँ बाप. छोटे छोटे स्किल्स हम उनको सिखाएं उन सेक्टर्स में. तो मेरा दिल ये चाहता है कि हमारे पास ऐसी जगह हो, हमारे पास ऐसे शेल्टर्स भी होने चाहिए जहाँ पर जली हुई बच्चियाँ दोबारा उन्हीं के साथ ना रहें जिन्होंने उनको जला दिया है. They should feel the freedom, they should have the strength of their character. कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर क्लासेस होनी चाहिए और वो जो कि आसान हो. ऐसे नहीं होने चाहिए कि जो कि बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज में होती हैं. स्मॉल चीज़ें जो उनको अट्रैक्ट करती हूँ. इंटरेक्ट प्लांटेशन. आई मीन ये सारी बच्चियाँ जो गाँव से आती हैं वो तो ज़मीनों में और मट्टियों में ही खेलती कूदती रहती हैं. वो कभी कोई बीज बो रही है तो क्यों ना उनको हम ऐसे हाउस होल्ड किचन गार्डन की तरफ लेके जाए. समथिंग विच इज़ मोर ऑर्गेनाइज्ड, मोर अप टू द मार्क, more at par with the international market. Message to everyone would be कि जब ये बच्चियाँ कर सकती हैं तो हम सब भी कर सकते हैं. ठीक है, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है. मेरे दिमाग में अब आगे क्या है? वेल,
पहली तो दिमाग में ये बात आती है कि दिस crime, which is the worst form of domestic violence, the most heinous crime, should come to an end. कम हो जाए, ऐसा सस्ता हो भी जाएगा. But there should be a safe haven for these girls. जहाँ पे अगर उनके साथ कुछ हो गया है तो वो आए तो सही, बैठे तो सही, दुख सुख अपना पिलोड़े. साइको सोशल वर्कशॉप्स होते हैं, उसमें जब ये लोग बैठती हैं तो उनको पता चलता है कि मुझसे भी ज़्यादा कोई तकलीफ में है. That helps them. So that positivity, वो बहुत ज़रूरी है. So small centers, छोटे छोटे गाँव के अंदर, पहले ज़माने में मसाजिद जो होती थी वो कम्युनिटी सेंटर्स होते थे. नमाज नहीं खाली पढ़ी जाती थी, औरतें भी अलग बैठ के गपशप कर रही होती थी, मर्द भी बैठे होते थे. कोई सीख रहा है, कोई सिखा रहा है, कुछ ला रहा है, कुछ खिला रहा है, कुछ बता रहा है. तो हम इस तरह के छोटे छोटे सेंटर्स, बेक सेंटर्स को जितना बड़ा होता जाता है उतनी ही जिम्मेदारियाँ, उतनी ही प्रॉब्लम्स बड़ी होती हैं. छोटे छोटे गाँव में, छोटे छोटे हाउस होल्ड्स में 10 लोगों का एक ग्रुप है, वो बैठ के बातचीत करे, बच्चों को एजुकेट करे. स्टोरी टेलिंग ख़त्म हो गई है. लाइक हैंडीक्राफ्ट्स के ऊपर जो इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें पहले बनती थी, अब बच्चे वो करते ही नहीं हैं, क्योंकि उनके माँ बाप उनको क्या सिखाएं, क्या पढ़ाएं, क्या कमाएं और क्या खाएं. सो आई सी दैट पूरे पाकिस्तान के अंदर हमारे पास स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स होने चाहिए.